Okay. And 2025? सब लोग 2024 में दे रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Actually, I want to give in 2023, but due to some problems, I am postponed, ma'am. What? Actually, I want to give in 2023, ma'am. But due to some problems, I postponed, ma'am. Why? Why? I feel that my preparation is not that much adequate to clear the exam. Okay. So that would be your first attempt? Yes, ma'am. That would be first attempt, ma'am. Okay, okay. So if you're not prepared, then don't appear for the exam just for the sake of appearing. Because otherwise, if you if something goes wrong, then you'll lose your one attempt. Yes, ma'am. Okay. Some student in messaging, Spur Sharma. So if you are attempting this year, so I will request you that you can focus on your prelims because this session is about answer writing session. So if you want to leave, you can leave and you can focus on your prelims part. Okay, so I have received your 8 copies. Total, I have received 8 copies. I don't know why people are not writing. Last time, 18 participants attended the session and only 8 of you have returned the answer. And I think you all must have received your copies, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So did you see what went wrong and how you need to address the questions, etc.? Did you read the comments? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So fine, I'll again share the copy. And next time what we do, I'll give you 3 or 4, 3 questions I'll give you. So write that and then submit. Okay, because GS4 will take time. So I will give you the separate strategy for GS4. So हम एक सेशन उसका कर लेंगे जब थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 तो 4 GS4 का भी हम सेशन रख लेंगे और फिर उसको हम लोग अक्यूमुलेट कर देंगे, ऐड कर देंगे अपने GS 1, 2, 3 के साथ क्वेश्चंस में. तो अभी मैं आपको डेली 3 क्वेश्चन दे दूंगी, आप 3 क्वेश्चन लिखना और 3 क्वेश्चन मुझे सबमिट कर देना फिर, ठीक है? और फिर जब GS4 स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको फिर डेली 4 क्वेश्चन दूंगी और फिर आप 4 क्वेश्चन लिख के मुझे सबमिट कर देना, तो वो ज्यादा सही रहेगा. Agree? Only 2 people are responding, Aviral and Venu, and Trushanki via this message. Rajvi, Dipankar, Yash, and Amlan. You all can like reply or because it should be interactive. अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. Otherwise मैं अभी यहाँ पे आंसर शेयर कर लेती हूँ. आप आंसर. Yes, ma'am. It's fine. ओके, ठीक है. तो मैं आप लोग के आंसर शेयर कर लूं अभी. आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने कैसे परफॉर्म किया और आंसर्स में एग्जैक्टली क्या क्या लिखनी चाहिए. आप दूसरों के आंसर्स भी अगर देखोगे ना तो Ma'am, I आप. have one doubt, ma'am. सॉरी Ma'am, whether we are going in schedule basis or random basis, ma'am. in session. So I am planning to make a schedule so that everyone can like follow the schedule, proper schedule without going here and there. So I'm planning, but it all depends on you guys, because if you'll tell me to make a proper schedule, I will make it, because as I said, I will give you 3 questions daily. So like I don't know what studies you have done, like what content you have, what classes you have done, how much you have finished. I have no idea about it. So I am like going by what is important and how can you improve answer writing. I'm going by this. Otherwise, I already also messaged on the group, like let's make a on a consensus note. Accordingly, I will give you the questions. Ma'am, I have one suggestion, ma'am. Yeah. Tell me. Ma'am, like any other coaching institute, should we make any schedule and give a certain amount of time? In those days, we can study and we can attempt the questions. Yes, I'm thinking this way. I hope you all are from some different coaching like Study IQ.
and some vision or No, some ma'am, I am self-preparing aspirant, ma'am. I am self-preparing. self-preparing, then you can make your own schedule. You can make your own schedule. And I will give some questions and you write it down. I'm not going by like what you are reading. Suppose you are reading history, but Aviral is writing, Aviral is reading geography. Dipankar is reading polity. So everybody is not reading the same material or same thing. So I am giving the question just to practice you, so that whatever limited content you have, you can write an answer and you can attempt it like this. Ma'am, before starting forward, let's just first check how many topics and subjects each of us have covered. Then I think it's going to be a bit easier for you to write the answers. Okay. Just get an idea like how many subjects have been covered by each one of us. Okay. Dipankar, can you like on your video? Yeah, I can. Wait a second. Okay. Yeah. Possible? Yeah. So Dipankar, you are telling I need to ask how many subjects you all have covered like this. Yes, more or less, yes. So actually, people are just started. They are beginner. So obviously they must have finished only 1 or 2 subjects and they are in the process. So it's, how is it possible that you all have read polity? Because last time you all said only polity you have covered. So Ma'am, I have not covered polity. I just have an idea. I have read it by myself, but I don't have yeah, but that like much. many people, like Trushanki, she's very new. Viral is just started, I guess. So many people have just started, like Rajvi just started. So many people just started. So like Venu, did you finish the polity? No, ma'am. Venu, First half only I have done. I just read it by myself. Finish, ma'am, but not revise it perfectly, ma'am. Yeah. So Dipankar, it would be like it would be create mess if we go by this subject. So I'm giving you the questions, like just trust the process. At least for a month, attempt questions just like that with your limited limited content and limited knowledge. Okay. So when I'll evaluate your answers, and then whenever you'll have within 30 days also you will be reading something ना. आप पढ़ ही रहे होंगे 30 डेज के अंदर भी, तो आपके पास धीरे धीरे कुछ कंटेंट आएगा. जैसे मान लो आपने अभी सोसाइटी पढ़ना स्टार्ट किया, तो सोसाइटी में आपने कास्ट सिस्टम पढ़ा या डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म, ये सब टॉपिक्स पढ़े आपने. फिर अब जब आप कास्ट सिस्टम पढ़ोगे, तब आप वापस जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने जो सबमिट किया था, जब आप उस क्वेश्चन को वापस देखोगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हम लोग इसके अंदर ये पॉइंट भी ऐड कर सकते थे, जो कि मैम ने भी नहीं बताया, मॉडल आंसर में भी नहीं था. आप लोग ये भी कर सकते हो. तो इससे आपको वैल्यू एडिशन ही होगा. आंसर राइटिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेली 1 घंटे तो आपको देनी है. जब आप डेली 1 घंटे आंसर राइटिंग दे रहे हो, तो डेली तो दे दो, कोई भी सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करो. और मैं जनरली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही दे रही हूँ. मतलब मैं क्वेश्चन यहाँ वहां से नहीं दे रही हूँ. जनरली सोच रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के पे ज्यादा फोकस करूँ. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जब ज्यादा फोकस उन थीम्स पे, एक्चुअली बेसिक पे कास्टिज्म पे क्वेश्चन आता है मोस्टली. और जो मैंने एक जेंडर गैप का दिया था आपको कल एक क्वेश्चन, वो भी कुछ 2-3 स्टूडेंट ने सबमिट किया था, वो उस पे भी क्वेश्चन आता है, टेक्नोलॉजी एंड जेंडर गैप. तो ये आपका एक ऐसे में भी एक टॉपिक था. तो आप जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखोगे डेली, तो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी. और फिर अगले दिन आपको इवेलुएटेड कॉपीज भी मिल जाएगी, उसका डिस्कशन भी मिल जाएगा, मॉडल आंसर भी मिल जाएगा. तो आपका एक टॉपिक तो तैयार हो ही गया. क्योंकि एनीवे इतना बड़ा सब्जेक्ट है यूपीएससी का, हम सारे सब्जेक्ट्स इस तरीके से तैयार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ छूटता ही है. तो इससे अच्छा है कि मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करवा देती हूँ जितना मैं करवा सकती हूँ. बिकॉज मतलब आई एम हेल्पिंग. मतलब मुझे ये पता है कि आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द आंसर राइटिंग सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. Okay, तो टॉपिक वाइज जाएंगे तो सारे स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, सब स्टूडेंट अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक वाइज जाएंगे तो वो फीजिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए. क्योंकि मैंने अगर लेट से ज्योग्राफी का क्वेश्चन दे दिया, तो किसी ने ज्योग्राफी पढ़ा है वो अटेम्प्ट कर लेगा, किसी ने नहीं पढ़ा तो वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा. लेकिन अगर मैंने सबको एक ही क्वेश्चन दिया, लेट से ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उस बहाने उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे. जैसे मैंने कल अगर लेट से मैं मॉनसून का क्वेश्चन देती हूँ, अगर आपने कवर नहीं किया है तो आप लिखोगे, आपको नहीं आएगा, कुछ आपको इवैल्यूएशन में पॉइंट्स मिलेंगे, तो जब आप बाद में उसको पढ़ोगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, आपका टॉपिक मॉनसून कवर हो जाएगा. तो मैं ये कोशिश करूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा थीम्स कवर हो, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक इस तरीके से कवर हो, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो मेरा पॉइंट ये. और धीरे धीरे आप लोग को आंसर राइटिंग भी पता चल जाएगी किस तरीके से इंप्रूवमेंट. जैसे कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अभी आंसर्स. मुझे बताना कि विजिबल है ना
मैं अभी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ आंसर राइटिंग। So ma'am, let's say that once हाँ. our subject is completed in the coaching and we resubmit the answer, so like the same for the same question, will you evaluate it again? ओके मैं एक चीज और बताती हूँ, अगर आप रीसबमिट करते हो ना, मैंने आपको मॉडल आंसर दे दिया और आपने जो पुराना लिखा मैंने आपको चेक करके दिया, अगर आप वो टॉपिक बाद में कवर करते तो आप अपने आंसर को खुद देखिए कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक की और आपको किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर मतलब चेकिंग का मतलब क्या है कि आपको ज्यादा, मैंने एक बार में सारे कमेंट्स दे दिए कि ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें मिसिंग है, तो अगर आप खुद बाद में उसको देखो कि वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आप मुझे बाद में सबमिट करते हो फिर मैं दूसरी चीज इवेलुएट करूँ तो बैकवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड जाने की वजह हम बैकवर्ड आ रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप खुद Got भी it. अपने आप को असेस करो। अगर मैं बार बार सेम पॉइंट लिख के इवेलुएट करके दूंगी तो आपको भी उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा, मेरा भी टाइम कंज्यूम होगा और आपको भी, आपके पास भी कोई पॉइंट नहीं बचेगा, तो आपको लगेगा कि कुछ भी बताया मैम ने, ऐसा लगेगा। फिर आपको एक पॉइंट पे आके ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद ही उसको बाद में जब आप टॉपिक पढ़ लेते हो, मेरा मोटिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा थीम कवर कराना, एटलीस्ट आपके हाथ में पेन है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, मेरे एक दोस्त है, उनके आईपैड पे लिखने की बहुत ज्यादा हैबिट थी नोट्स वगैरह बनाते वक्त, तो फिर उन्होंने पूरे साल आंसर राइटिंग तो प्रैक्टिस करी नहीं, जैसे हम सब मिस्टेक करते हैं उन्होंने भी नहीं करी। जब मेंस के टाइम पे आंसर राइटिंग लिखने की टर्न आई तो उनसे बहुत मुश्किल हो गया। ही ओनली अटेम्प्टेड 14-15 क्वेश्चन इन एवरी पेपर। उनसे 3-4 क्वेश्चन छूट ही रहे थे और बार बार उनका हाथ पेंसिल की तरफ जा रहा था। लाइक रबड़, हम लोग पेज पलटते हैं ना, ऐसे पलटते हैं आईपैड के अंदर, जैसे पलटा जाता है उनकी हैबिट बार बार वैसे जाए थी, उनको बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे वो लिखने के अंदर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट लिखने की प्रैक्टिस तो शुरू कर ही दीजिए, आंसर राइटिंग वो जरूरी है। समझ, आई होप यू ऑल आर अग्रीइंग विद दिस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये राजवी ने आंसर लिखा था, कास्ट सिस्टम का क्वेश्चन था। Caste system is a dynamic reality that is acquiring a greater degree of flexibility in the modern society. Ma'am, your screen is not shared. Screen अभी भी नहीं Means your screen is shared, but we are not able to see that document. Yeah. ये वो लास्ट टाइम वाली प्रॉब्लम आ रही है। अभी दिख रही है? No, ma'am. No ma'am. Ma'am, reshare the screen. Wait. Now can you see? Still no, ma'am. मैम शायद आप फुल स्क्रीन शेयर नहीं करते हो, बस एक विंडो शेयर करते हो, इसलिए वो अटक जाता है। अच्छा, okay, wait. Now I hope again I did it. Can you see that? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so ये कॉपी जो है वो राजवी की है। Rajvi, are you here? Yes. So Rajvi, can you Yes, see? ma'am. राजवी, Yes, ma'am. मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज बोली थी आपको कि जो इंट्रो है उसको काफी थोड़ा शॉर्ट रखो। Okay, ma'am. ठीक है, तो जो ये अर्लियर टाइम से ये आपको सब हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं थी। इंट्रो के अंदर देखो क्वेश्चन क्या है, कास्ट। आप क्वेश्चन को ब्रेक करो सबसे पहले। लिसन, सब लोग सुनो, क्वेश्चन को हमें ब्रेक करना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे? क्वेश्चन ये समझ आया क्या है? क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्वेश्चन समझ आया ना सबको कि क्वेश्चन क्या दे रखा है? Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन का मेन थीम है कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कास्ट सिस्टम एक रियलिटी है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर आ रही है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। उन्होंने खुद ही दे दिया टर्म मॉडर्न सोसाइटी। तो इस स्टेटमेंट के लिए आप ये बताइए कास्ट सिस्टम इंडिपेंडेंस से कैसे चेंज हुआ है, इवोल्यूशन बताइए कास्ट सिस्टम का, और कुछ जो इसके रीजन है चेंज होने के वो बताइए। तो क्वेश्चन का मतलब ये है। तो मेन थीम इसकी कास्ट है। तो एक तो आप सबसे पहले शुरू कीजिए, अगर किसी कास्ट की डेफिनेशन आती है तो कास्ट की डेफिनेशन से शुरू कर दीजिए। अगर किसी के पास डेफिनेशन नहीं है और आपके पास कोई एग्जाम्पल है, रीसेंट एग्जाम्पल है या कोई रिपोर्ट है, कास्ट सेंसस भी निकलता है, अगर उसका कोई डेटा है तो आप वहां से भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मोस्टली सबको लिखा है डिफाइन कर दो कास्ट को। क्यों? क्योंकि कई बार सोसाइटी में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कास्ट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट सोसाइटी, ऐसे करके, या राइट इट्स रेलेवेंट इशू। तो उसके अंदर अगर उन्होंने डेफिनेशन पूछी तो आप लोग को नहीं आएगा। और हमें कोचिंग इंडस्ट्री में भी या बहुत जगह में ये कास्ट की डेफिनेशन तो नहीं याद करवाई जाती। तो मेरा पॉइंट ये था कि एटलीस्ट आप देख लो कि डेफिनेशन क्या है। तो मैंने बहुत लोग को इंट्रो में लिखा है कि आप डेफिनेशन देख लो। बाकी अगर आपको कोई करंट एग्जांपल याद हो तो आप वहां से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन किसी ने भी शुरुआत नहीं करी है करंट एग्जांपल से और ना ही किसी ने डेटा के साथ शुरुआत करी है। ठीक है, आर यू हियर?
Yes, ma'am. ओके सो उसके बाद आपने लिखा है फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। सो फीचर्स नहीं लिखने हैं, फीचर्स क्यों लिखने होंगे, क्वेश्चन है ही नहीं ये। क्वेश्चन में ये है कि Okay. कास्ट सिस्टम कैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, मतलब आप ये अगर ये देखो कि हम मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन में आ रहे हैं, वुमेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम में आ रही है, इंडिपेंडेंट बन रही है, तो ये चीजें जी कास्ट को कम कर रही हैं, बैरियर्स को। जो कास्ट सिस्टम जो पहले रिजिड था वो फ्लेक्सिबल हो गया है। जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली में है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे खुद के शहर में होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई मौदाहा से है, कोई हरदोई से है, तो ऐसे छोटी जो टियर 2 सिटी से भी जो नीचे या विलेज वाली जगह जहाँ पे जो कास्ट सिस्टम का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बहुत डिफरेंट है रेदर देन बहुत डिफरेंट है दिल्ली और मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज से। तो इसका रीजन यही है ना, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, वर्किंग स्किल्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल हो रहा है। तो आपको रीजंस ये लिखने थे, फीचर्स नहीं लिखने थे इसके अंदर, ठीक है। देन रीसेंट टाइम्स के एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने आपको लिखा है जैसे लॉ और पॉलिसीज का एक सबसे पहले पॉइंट लॉ से रिलेटेड देखो। आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, ये देखो कि उसका पॉलिटी में, आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज है तो वो लिख दीजिए। तो लॉ जैसे बन रहे हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए, अनटचेबिलिटी एक्ट जो बना हुआ है, और आर्टिकल्स जो है 14, 15, 17, ये सब का डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वाले आर्टिकल है, तो आप इसके अंदर ये आर्टिकल मेंशन कर सकते हो। देन रीसेंट टाइम में आप एग्जांपल, रीसेंट टाइम का कोई एग्जांपल दे दो, ठीक है, वो आप एग्जांपल दे सकते हो कि वो दिखाता है कि कास्ट सिस्टम कम हो रहा है। अब नाउ ये एक स्टेटमेंट है, तो जब भी कोई स्टेटमेंट होता है ना, तो उस स्टेटमेंट के अंदर हमें उसके एंटी आर्ग्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। एंटी आर्ग्यूमेंट्स यानी कि, हेलो, Yes, ma'am. हाँ, एंटी आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कि कास्ट सिस्टम, हमें ऐसी जगह बताना है कास्ट सिस्टम जहाँ पे कास्ट सिस्टम अभी भी भरा हुआ है, लाइक इंटरकास्ट मैरिज। आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो कि अभी भी टैबू है इंटरकास्ट मैरिज। खाप पंचायत इसका एक एग्जांपल है जो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके के आपको ये एग्जांपल्स देने होंगे और इस तरीके से आपको आंसर का स्ट्रक्चर करना होगा। मैं ये सेशन खत्म होते ही आपको मॉडल आंसर शेयर कर दूंगी जो मैंने देखा है कि इसका आंसर कैसे होना चाहिए। तो ये चीज समझ आई। और दूसरी बात है, आपने आर्टिकल्स लिखे, आर्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं करना, आर्टिकल मेंशन किए, जो अच्छी बात है एक्सप्लेन मत करो। आप लोग सब लोग आंसर देख रहे हो ना, ये कि मतलब क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आपने जो आंसर कल लिखा है जरूरी नहीं आप 10 दिन के बाद सेम आंसर लिखोगे, आप उसका डिफरेंट आंसर लिखोगे। ओके, हेलो, Yes, ma'am, you are audible. I am audible but you all are not audible. ओके, सो नाउ कंक्लूजन में राजवी कंक्लूजन को कंसाइज कर दो। राजवी, आर यू हियर? Yes, ma'am. I'm listening. तो कंक्लूजन थोड़ा सा कंसाइज कर दो, कंक्लूजन एंड करो पॉजिटिव नोट पे। दिस इज यू हैव रिपीटेड द क्वेश्चन एंड मॉडिफाइड द क्वेश्चन ओनली। Okay, ठीक है, okay. तो ये रीजन थी। ये क्वेश्चन आई डोंट नो, शिव इज देयर, शिव प्रेजेंट है क्या? शिव ने अच्छा आंसर लिखा है, रिलेटिवली सबसे ज्यादा अच्छा आंसर लिखा है। इसने कास्ट सिस्टम का पहले डेफिनेशन दे दी है, उसके बाद उन्होंने सिस्टम बताया कि चेंज कैसे हुआ है, मॉडर्न एजुकेशन दिया, सेक्युलरिज्म दिया, संस्कृताइजेशन ऑफ दलित आइडेंटिटी, कंसोलिडेशन ऑफ दलित आइडेंटिटी, ये इन्होंने काफी अच्छा पॉइंट लिखा है इसके अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा है, उसके बाद उनको मैंने मेंशन किया है कि पॉलिसीज और अगर लॉ कोई रिलेटेड हो कास्ट से तो वो लिख दीजिए, ठीक है। और कास्ट सिस्टम रिमेन अनचेंज, उन्होंने दूसरा पॉइंट भी, ये जो पार्ट है वो एक्सप्लेन अच्छे से किया है। तो इट वाज रिलेटिवली गुड आंसर। तो आप इसमें आंसर ये भी शेयर कर दूंगी, अगर शिव बोलते हैं तो आप ये भी आंसर देख सकते हो कि किस तरीके से लिखा जा सकता है। नाउ दिस आंसर आई डोंट नो कौन है ये, इन्होंने नाम नहीं लिखा, प्लीज नेक्स्ट टाइम नाम लिख देना। कौन है ये, किसी को दिख रही है अपनी कॉपी ये वाली? नहीं पता है। तो सिमिलरली आपको कास्ट की डेफिनेशन देनी है। इनका एक पॉइंट अच्छा कास्ट सिस्टम में चेंजेस हुए, इंटरकास्ट मैरिज, इन्होंने इसको पॉजिटिव में लिख दिया कि इंटरकास्ट मैरिज को अभी भी एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइक दैट। अच्छा, एक और चीज, आप लोग जैसे इंग्लिश मीडियम से हो सभी लोग, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो ये जो हिंदी के कोटेशन होते हैं ना वो हिंदी में मत लिखो, क्योंकि कोई आपको नहीं पता एग्जामिनर को हिंदी आती है कि नहीं आती, और वैसे मना भी होता है कि इंग्लिश हिंदी का कोटेशन इंग्लिश में ऐसे करके मतलब
लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, उसको इंग्लिश में लिख सकते हो बट हिंदी में नहीं लगेगा, राजा का बेटा राजा ही चलेगा टाइप्स, ये नहीं लिखना है। ये अगर आप नेक्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्लीज इसको अवॉइड करना, आप लोग भी अवॉइड करना अगर कोई सोच भी रहा है करने का तो। एक ये डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे। देन आर्टिकल्स वगैरह मेंशन करो, दिस वाज आल्सो गुड, रिलेटिवली गुड। ये मुझे इन्होंने भी नाम नहीं लिखा Yes, है, ma'am. This is my answer. दीपांकर। Yes, ma'am. या सो इट वाज गुड, आपने डिफाइन किया है कास्ट को थोड़ी तरीके से। अभी आपने कास्ट मोबिलिटी लिखा है, तो कास्ट मोबिलिटी की जगह आप सोशल मोबिलिटी लिख सकते हो। सोशल मोबिलिटी हो रही Okay, है ma'am. हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, स्किल्स डेवलप हो रही है, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, तो विच इज हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट बायसनेस। तो कास्ट मोबिलिटी नहीं हो रही है, मतलब सोशल मोबिलिटी लिख सकते हो, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट वर्ड। और उसके बाद Okay, ma'am. पॉइंट को कंसाइज करो आप। स्किल एजुकेशन लिखा है, दैट इज गुड, बट इस पॉइंट को कंसाइज करना है। देन कास्ट Okay. इंटरेक्शंस, ऑब्वियसली कास्ट इंटरेक्शन सोशल मोबिलिटी के साथ ही का एक ही पॉइंट है, मतलब पॉइंट एक ही है, इसको थोड़ा सा आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ऑक्यूपेशन इज फाइन, दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है तो उसमें आर्टिकल मेंशन किया, दैट इज फाइन। इसमें आर्टिकल 16 17 भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि वो भी बता रहा है। अफर्मेटिव पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लगी जाती है, रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अफर्मेशन की वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लो, तो रिजर्वेशन की वजह से वो चीजें हो रही है। तो आप सेम प्लेस पे देखते हो जिनका कास्ट लोअर क्लास मानते हो आप, या तो इसकी वजह से भी आपका ये एक रीजन मान सकते हो यहाँ पे। मंडल कमीशन का मेंशन दे सकते हो एक एग्जांपल, क्योंकि आपने आंसर उस तरीके से लिखा है तो मैंने आपको कंटेंट उस तरीके से दिया कि आप ये एक एग्जांपल भी लिख सकते हो। सिमिलरली इन चेंज नहीं हुई कास्ट सिस्टम, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज टैबू है, खाप पंचायत, इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो। तो वेनु वेनु आपका है कि सबसे पहले ये मतलब ऐसे मत शुरू करो एक्सक्लूडिंग ब्राह्मण कैटेगरी, मतलब आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में बोल रहे हो इसका मतलब है। इससे अच्छा आप एग्जांपल दे दो कोई, वो ज्यादा सूटेबल है ना। सब हेडिंग लिखो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको शायद बताया था कि यहाँ पे सब हेडिंग लिखना है। आपको समझ आ रहा है बाकी की कॉपी देख के कि कैसे सब हेडिंग लिखनी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो सब हेडिंग लिखो, क्योंकि पैराग्राफ में लिखोगे तो ऐसे तो है नहीं कि आप पैराग्राफ में लिखोगे, तब सब हेडिंग लिखो इसमें। देन इसके बाद डायरेक्टली आपको सब पार्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि ब्राह्मण आप बार बार रिपीट कर रहे हो कास्ट हायरार्की में, तो ये मत रिपीट करो बारी बारी से इसको। ये ऑलरेडी आपने ऊपर लिख दिया, बार बार आपसा लग रहा है सिर्फ आप ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हो या फिर ब्राह्मण के अगेंस्ट बोल रहे हो, और ये थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है। दूसरा बात है, यहाँ से ऐसे स्टोरी मत करो, ये रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट कर दो एक्सप्लेनेशन से। जैसे आपने इकोनॉमिक चीज दी है वो अच्छी है, बट इसको एक्सप्लेन करो, लाइक जॉब्स, स्किल्स, एजुकेशन, ठीक है। पॉलिटिकल में आपने लिखा है, बट पॉलिटिकल में क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिखो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिखो ना, कि जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसी दे रही है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, आर्टिकल्स मेंशन कर दो आप इसके अंदर। कल्चर एंड ट्रेडिशन प्रेरोगेटिव्स आपने लिखा है, अब इसको एक्सप्लेन करो कि क्या। मनुस्क्रिप्ट से बेटर है कि आप मंडल कमीशन का एग्जांपल दो। इन सबसे अच्छा एग्जांपल है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछा है क्वेश्चन में, कीवर्ड दे रखा है ना पोस्ट इंडिपेंडेंस से बताओ, तो इवोल्यूशन में मंडल कमीशन दे दो, मंडल कमीशन आया था आपका, ठीक है। उसके बाद आप वे फॉरवर्ड के अंदर अब जैसे आपने ये लिखा है, अशोक गहलोत अनाउंस द इंटरकास्ट मैरिज अवार्ड मनी 10 लाख रुपीज, ये अच्छा पॉइंट है, पर इसको लैंग्वेज में अच्छा फ्रेम करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फ्लो गवर्नमेंट ऑफ चार्ट बना राजस्थान। सकते हैं हम इसमें। फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, वो किस तरह करेंगे क्योंकि टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट रहता है। कौन है ये? अच्छा, ओके, Yes, ma'am. मेरा भी वही डाउट था. हाँ, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे कास्ट सिस्टम के अंदर फ्लो चार्ट्स और टेबल्स यूज कर सकते हैं। मैम कैसे करें, मतलब वो रहता है, मतलब स्पॉट में, मतलब नहीं समझ में आ रहा था. अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताती हूँ कि फ्लो चार्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं। मैं मतलब एक क्वेश्चन ऐसा देती हूँ या फिर मैं उसका मॉडल आंसर ऐसे बना के देती हूँ जिसके अंदर टेबल्स और आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. हाँ, तो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाती हूँ जिसके अंदर आपको लगे कि टेबल्स और फ्लो चार्ट्स का कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ऐसा उसका मॉडल आंसर बना के दे देती हूँ आप लोग को, ओके मैम. ठीक है। थैंक यू मैम.
क्योंकि अभी मेन मोटिव ये है कि आप लोग आंसर्स लिखिए, अभी आप लोग को स्ट्रक्चर सीखने की जरूरत है। फ्लो चार्ट, यूसेज ऑफ फ्लो चार्ट, टेबल्स और ये सब जो स्केमेटिक प्रेजेंटेशन होता है ये बहुत बाद में आता है। ये तो तब होता है जब हमारे पास कंटेंट खत्म हो चुका है और हमें अपने प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है। हम चाहते हैं कि हमारी, हेलो, आवाज आ रही है ना आप लोग को? एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि इंटरनेट ना डिस्कनेक्ट है, इट्स रेनिंग हियर। सो ओके, तो मुझे लगता है कि ये आपको जब प्रेजेंटेशन आपको इंप्रूव करना होगा कि कंटेंट के बाद, तब आप इसको वो कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स और टेबल्स को यूज। अभी आप लोग को अपने आंसर्स पे ध्यान देना चाहिए। हेलो, Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. तो आंसर्स पे ध्यान देना चाहिए आप लोगों को कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स डोंट वरी, मैं एक दो आंसर्स आप लिखो, और या एक हफ्ते लिखो एटलीस्ट। एक हफ्ते के बाद मैं आपको ऐसे मॉडल आंसर बना के दूंगी जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि फ्लो चार्ट्स कैसे यूज किया जाता है। दैट वुड बी फाइन। अभी आप पहले प्रैक्टिस करो, थोड़ा लिख के देखो आंसर्स को। एक ये आंसर भी था, आई डोंट नो किसने लिखा है, इनका भी थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर था इनका आंसर, तो आप इनका आंसर भी देख सकते हैं। इट्स गुड, इन्होंने आर्टिकल भी मेंशन किया है, टेक्नोलॉजी भी मेंशन की, इन्होंने कोटेशन भी मेंशन किया था बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड, बट कुछ वेग पॉइंट्स है, तो यू कैन चेक इट। दिस वाज अ त्रिशांकी, आई गेस इट्स योर कॉपी, राइट? Yes, ma'am. या त्रिशांकी, इट वाज फाइन, आंसर अच्छा था, कंपैरेटिवली बेटर था आपका। पिछला आंसर जो आपने दिया था उससे आपका ये आंसर काफी बेटर था। Thank you, ma'am. ठीक है, या बट आप रिपोर्ट और रेफरेंस, अब आप जैसे आप कंपैरेटिवली आगे हो, मतलब कंपैरेटिवली आगे इन द सेंस कि आपको समझ आ गया कि आंसर लिखना कैसे है, तो आप इसके अंदर एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो कि होते हैं रिपोर्ट, डेटा और एग्जांपल्स का रेफरेंस लेके आप कर सकते हो। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. या दैट्स इट। मुझे इतनी कॉपीज मिली थी, टोटल 8 स्टूडेंट ने अपनी कॉपी दी थी मुझे, तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि कैसे आंसर लिखने और कैसे लिख सकते हैं। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बाकी आज फिर आपको कल तक दे देती हूँ, आपको 2-3 क्वेश्चन दे देती हूँ, वो सबमिट कर देना मुझे लेके, फिर हम सेशन परसों कर लेंगे। और मतलब मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आप लोग डाउट हो वो पूछो मुझसे, ज्यादा सही रहेगा कि आंसर राइटिंग में क्या डाउट्स आ रहे हैं आपको। मैम टाइम बहुत लगता है और वर्ड लिमिट का प्रॉब्लम लगता है। ठीक है, टाइमिंग स्टॉप वॉच लेके बैठो, नेक्स्ट टाइम मुझे बताना कि कितना टाइम लग रहा है आपको। स्टॉप वॉच में बिना उठे, बिना इधर उधर देखे, इंटरनेट सर्च किए, बुक देखे आंसर लिखो, और अगर नेक्स्ट टाइम मुझे आप बता सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या कितना टाइम लगना चाहिए आपको, और अभी इनिशियली कितना लग रहा है, अभी क्या कितना लग रहा है आपको टाइम वैसे? मैम 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए अराउंड 20 मिनट्स जैसा लगता है, और 250 वर्ड्स वाले के लिए, सॉरी, दिस वाज फॉर 150 वर्ड्स, एंड फॉर 250 वर्ड्स वाले के लिए 30 से 45 मिनट्स। 13 से 14 मिनट्स, 13 बोला है ना? नो मैम, 30 से 45। 30 से 45 मिनट्स तो बहुत ज्यादा ma'am. लग रहा है, तो हमें इसको कम करना है। बेसिकली आइडियल टाइम होता है, आइडियल टाइम तो ऐसे कुछ होता ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन में हमें कम लगता है, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा, बट अगर एवरेज निकालते हैं पेपर के हिसाब से तो 7 मिनट लगना चाहिए हमें 10 मार्क्स में, और 11 से 12 मिनट लगना चाहिए हमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। ऐसे इस टाइम पे लेके आना है। तो दीपांकर, आप देख रहे हो कि मतलब हर स्टूडेंट्स को देखो कितने कितने इश्यूज आ रहे हैं। अगर मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन देने लगूंगी ना, अगर जैसे जिन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, समझ रहे हो आप? क्योंकि Yes, अगर प्रैक्टिस yes, ही नहीं होगी, अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है। कंटेंट धीरे धीरे आपका बनेगा, जैसे जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे। तो पहले अभी हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। अगर वो सॉल्व हो जाएगी तभी हम अपना कंटेंट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके आंसर राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करना, और ये तभी हो पाता है जब आप कंटिन्यूस रिवीजन कर रहे हो, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर न्यूज़पेपर से उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो करंट एग्जांपल्स को, डेटा रेफरेंस वगैरह लेके। ओके मैम। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और कोई डाउट है किसी को? अच्छा, त्रिशांकी ने मैसेज किया है कि आई हैव ए इशू विद कंटेंट। तो त्रिशांकी, कंटेंट का इशू हमेशा ही रहता है,
और इनफैक्ट आप जब मेंस भी लिख रहे हो तो कंटेंट का इशू रहता है, बट कंटेंट का क्या इशू, मतलब स्ट्रक्चरिंग आपकी मैंने देखी आंसर में ठीक आ रही है। कंटेंट का इशू ये हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको सोसाइटी का क्वेश्चन किया, आपने सोसाइटी की अगर चीजें पढ़ी नहीं है तो आपको डेफिनेटली कंपैरेटिवली कम कंटेंट आएगा ना जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा। तो आपको वो इशू, हाँ एग्जाम्पल रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे तो एग्जाम्पल आप डेली प्रैक्टिस से ही रिकलेक्ट कर पाओगे। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आज पेपर के अंदर कोई एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है, आज पेपर के अंदर जो एग्जाम्पल पढ़ा वो याद आपको कब रहेगा, जब करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली रिवाइज करोगे, हर वीकली या मंथली या 15 दिन से रिवाइज करोगे, तभी तो आपको एग्जाम्पल याद रहेगा, अदरवाइज आपको कैसे याद रहेगा एग्जाम्पल। तो कंटेंट का मैम हाँ another thing, मैम कॉपीज दूसरों की मेरे को मतलब कॉपीज चाहिए थी दूसरों के आंसर्स पढ़ने के लिए, तो मैम वो अगर मैं दूसरों को परमिशन है तो भेज ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, अब परमिशन हो नहीं हो, स्टूडेंट ने अटेंड किया है, उन्होंने कॉपीज भी सबमिट की है और ये सेशन तो वैसे भी यूट्यूब पर एज इट इज जाता है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं स्टूडेंट की कॉपीज भी आप लोग को ना ग्रुप पे भेज ही देती हूँ, सबकी कंबाइंड है, सबकी भेज देती हूँ, आप देख लेना। लेकिन फिर है ना आप ओके लोग ये मत करने लगना कि इस स्टूडेंट की ये मिस्टेक थी, ये पॉइंट आउट नहीं हुई, ये हमने किया था पॉइंट आउट नहीं हुआ, मतलब कंपेरिजन मत करने लग जाना। मैं आपको मॉडल आंसर भी दे रही हूँ, वो आप मान के चलना कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एज कम्पेयर टू व्हाट स्टूडेंट आर राइटिंग। तो आपको अगर क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होना वो मुझसे पूछना है, बट आप मुझसे ये मत अवॉइड करना, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि मैम उस स्टूडेंट की ये मिस्टेक आपने क्यों नहीं देखी, मेरी ये देख ली, मतलब ये तो हम प्रैक्टिस करें, कोई कंपटीशन तो हम कर नहीं रहे अभी। जब कंपटीशन करेंगे, टेस्ट सीरीज होगी, जब मैं आपको टेस्ट तरीके से लेने लगूंगी तब आप ये बोल सकते हो, बट अभी आप सिर्फ उसको एज अ नॉलेज वाइज लेना और प्रैक्टिस वाइज लेना। यस मैम ठीक है, तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, आप लोग उस ग्रुप पे हुए ही तो मैं आप लोग को बाकी स्टूडेंट्स की कॉपीज भी शेयर कर दूंगी और आप लोग के साथ मॉडल आंसर भी शेयर कर दूंगी। ओके थैंक यू या एनी अदर डाउट? Ma'am, will you tell the sources exact what we have to read for all GS? For all GS, okay, I Yes, will ma'am. make a video for this, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी बना के, जिस दिन मैं सेशन नहीं ले रही होंगी तो आप वो देख सकते हो। बाकी मैं अपने सोर्सेज बताऊंगी जो मैं पढ़ा करती थी और जो मुझे कंपेटिवली इजी लगते थे, मतलब विदाउट एनी बायसनेस। जो कोचिंग के मुझे मटेरियल अच्छे लगेंगे मैं आपको बता दूंगी, जो नहीं अच्छे लगेंगे वो आप देख लेना, क्योंकि मैं अपना एनालिसिस बताऊंगी उसके अंदर। और बाकी अगर आपको ज्यादा ऑथेंटिकेट चाहिए तो आप टॉपर्स की वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि मोर ओवर सबके सेम ही सोर्सेज हैं, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको सोर्सेज शेयर कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी एक उसके लिए। एनी अदर डाउट? आई गेस दैट्स इट देन। तो ओके, तो फिर हम ये सेशन खत्म कर सकते हैं आज तो, और हम लोग कल इसको शुरू कर देंगे फिर, मतलब कल मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, आप परसों सेशन रखते हैं तो दिस टाइम इज फाइन राइट, 9:15 वाले टाइम, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग भी और स्टूडेंट्स भी हैं, और आप लोग की स्टडी है क्योंकि भी क्लासेस आई गेस 9 बजे खत्म हो जाती है लाइव क्लासेस। ओके ठीक है, तो फिर मैं ये सेशन अभी क्लोज करती हूँ और हम परसों मिलते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन कल मॉर्निंग तक दे देती हूँ और आप मुझे सबमिट कर देना, फिर कल सबमिट कर देना फिर कल तक। इज इट कूल? Yes, ठीक है, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन देती हूँ डिफरेंट डिफरेंट चीजों के पेपर से रिलेटेड, एंड आप लिखना, मुझे आंसर सबमिट करना, थोड़ा ना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करना। जो 2 आंसर्स आपने लिखे हैं ना, कुछ लोगों ने जिन्होंने 2 लिखे हैं सबमिट किए, तो आप ये देखना कि कैसे, मतलब क्या है जो हम गलतियां हैं जो हमारी पकड़ी गई है या हम जो मिस्टेक कर रहे हैं उसको वो रिपीट ना हो, और ये कोशिश करना कि आप उन आंसर से बेटर आंसर लिखो नेक्स्ट टाइम जब भी लिखो। ठीक है, then that's it। जिन लोगों ने सेशन नहीं अटेंड किया वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, वैसे मैं यूट्यूब पे डाल ही दूंगी, बट मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग यहाँ पे आइए ताकि आप लोग के ये जो डाउट्स है ना वो सॉल्व हो जाए। मेरा बस मकसद यही है जूम सेशन लेने का, बाकी तो यूट्यूब पे अपलोड हो ही जाएगी। तो आप लोग कोशिश करना कि आप अपने फ्रेंड्स या जो भी है जिनको डाउट हो आंसर राइटिंग के अंदर या ओवरऑल, वो अटेंड कर सकते हैं सेशन, और
आ सकते हैं. Any, this session is for everyone. Okay. So we'll close this session now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you guys. Thank you, ma'am. तो don't worry, just relax and पढ़ाई करो. मैं आपको कल questions देती हूँ. Okay. Bye bye. Take care. Bye, ma'am.